Hi friends, myself Subhalakshmi, and today I am here with another new topic, that is protein degradation and proteolysis. So, what is proteolysis? Proteolysis is the breakdown of proteins into smaller polypeptides or amino acids. Okay, and why protein degradation or proteolysis take place? There have three main function. Protein degradation have three main function. First one is to store nutrients in the form of proteins and to break them down in the times of metabolic need. Second one is to eliminate abnormal proteins whose accumulation would be harmful to the cell. And third one is to permit the regulation of cellular metabolism by eliminating superfluous enzymes and regulatory proteins. तो basically protein degradation जो है आपका, protein degradation means protein का टूटना, protein का degrade होना. And proteolysis means lysis of proteins. Okay, so protein lysis के तीन डिफरेंट फंक्शंस हैं. ज़रूरी नहीं कि प्रोटीन की डिग्रेडेशन हो रही है इसका मतलब ये है कि उस प्रोटीन की ज़रूरत नहीं है. अब ऐसा नहीं है. हो सकता है उस प्रोटीन की हमें इंटरमीडिएट मेटाबोलाइट्स चाहिए जिसकी ज़रूरत हमें टीसीए साइकिल में हो, जिसकी वजह से हम एटीपी प्रोड्यूस कर सके. जब हम आगे पढ़ेंगे फैट मेटाबॉलिज्म, आपका प्रोटीन मेटाबॉलिज्म, तब हम ये बात जानेंगे कि आपका जो एसिटाइल कोएंजाइम ए यूज़ होता है टीसीए साइकिल में, दैट इज़ प्रोड्यूस बाय द प्रीकर्सर्स ऑफ दिस अमीनो ग्रुप्स एंड फैटी एसिड ग्रुप्स. ओके, आपके हम ठीक है, इसको हम ये कभी दूसरे सेशन में डिस्कस करेंगे. ओके, किस तरह से आपका एसिटाइल कोएंजाइम प्रोड्यूस होता है प्रोटीन और फैटी एसिड की हेल्प से. ओके, चलिए, तो अभी हम बात करें प्रोटीन डिग्रेडेशन की. आपका प्रोटीन डिग्रेडेशन का दो मैकेनिज्म है. ठीक है, देयर आर टू मैकेनिज्म फॉर प्रोटीन डिग्रेडेशन. फर्स्ट वन इज लाइसोसोम डिग्रेड प्रोटीन. ओके, एंड सेकेंड वन इज योर ubiquitinase mediated protein degradation. Okay, where we will be using ubiquitin, where your body use ubiquitin to degrade the protein. Okay, in case of lysosome degradation, okay, I hope everyone know about lysosome. Okay, and its enzymes. It have hydrolytic enzymes, how it degrades protein non-selectively via endocytosis and all those things. Okay, I hope this thing is clear to everyone. Okay, so lysosome also have, okay, and most important thing is lysosome protein degradation is non-selective when the cell is well nourished, okay, in a normal condition. But when when the cell is fasting or after a prolonged fast, ठीक है, यानी कि नॉर्मल कंडीशन में जो लाइसोसोम का डिग्रेडेशन होता है, प्रोटीन डिग्रेडेशन, दैट इज नॉन सिलेक्टिव इन नेचर. बट इन केस ऑफ प्रोलॉन्ग फास्ट, आफ्टर प्रोलॉन्ग फास्ट, जो प्रोटीन डिग्रेडेशन होता है लाइसोसोम की पाथवे, जो लाइसोसोम के थ्रू, दैट इज सिलेक्टिव इन नेचर. ओके, ऐसा नहीं कि हम हर कोई प्रोटीन, यूजफुल प्रोटीन को भी डिग्रेड कर रहे हैं, बिकॉज दैट इज नॉट प्रेजेंट इन सरप्लस अमाउंट नाउ. ओके, so in that condition there is selective pathway. अब ये selective pathway है, इसमें क्या होता है? So what happens now? The lysosome also have a selective pathway which is activated only after a prolonged fast, that imports and degrades cytosolic protein containing the pentapeptide. This is pentapeptide, lysine, phenylalanine, glutamate or glutamic acid, whatever you call it, arginine and glutamine. Okay, इसको हम KFERQ भी कहते हैं, और KFERQ सीक्वेंस. ठीक है, सो जिस प्रोटीन में ये सीक्वेंस होगा उसको लाइसोसोम डिग्रेड करेगा. गॉट इट? उस कंडीशन में लाइसोसोम उस प्रोटीन को डिग्रेड करेगा. अच्छा, ये तो थी आपकी लाइसोसोम डिग्रेडेशन की बात. अब हम बात करते हैं यूबिक्यूटिन मार्क प्रोटीन डिग्रेडेशन की. ठीक है, जो आपका एक नॉर्मल प्रोटीन है. ठीक है, दिस इज अ नॉर्मल प्रोटीन. वेट, लेट मी टेक द मार्कर. यस,
I guess I now have the pen. Yeah, now I have the pen. ओके, सो मान लीजिए आपका एक प्रोटीन है, ठीक है। इस प्रोटीन के एंड में, एंड टर्मिनल्स पे जाके आपका यूबिक्यूटिन ऐड हो जाता है। ये साइन क्या है? ये साइन है, मतलब इसका मतलब ये है कि नाउ दिस प्रोटीन is ready for degradation since ubiquitin is attached to, is covalently linked to इस टर्मिनस, ठीक है। बेसिकली क्या है, अगर आपका किसी प्रोटीन के एंड टर्मिनस पे जाके यूबिक्विटिन ऐड हो जाता है, इसका मतलब ये होता है कि अब वो प्रोटीन डिग्रेडेशन के लिए रेडी है, इस प्रोटीन का डिग्रेडेशन होगा, ठीक है। और ऐसा नहीं कि एक ही कोवेलेंटली एक ही यूबिक्विटिन जाके उस प्रोटीन के एंड टर्मिनस पे जाके अटैच होगा। ऐसा होगा तो अगर ऐसा इस कंडीशन में, मोनो यूबिक्विटिनाइज कंडीशन में आपका मोनो यूबिक्विटेड कंडीशन में आपका प्रोटीन डिग्रेडेशन नहीं होता है। प्रोटीन डिग्रेडेशन होने के लिए आपका पॉली यूबिक्विटिनेटेड कंडीशन होना चाहिए, मींस मिनिमम 4 यूबिक्विटिन उसके एंड पे जाके अटैच होनी चाहिए, बाइंड करनी चाहिए कोवेलेंटली, तभी आपका प्रोटीन डिग्रेडेशन हो पाएगा एफिशिएंटली और आपका प्रोटीन डिग्रेड कर पाएगा। अच्छा, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दिस प्रोसीजर, दिस यूबिक्विटिनेटेड protein degradation, ubiquitin mediated protein degradation is ATP dependent process, ठीक है। इसमें काफ़ी एंजाइम्स इन्वॉल्व है, जैसे कि E1, E2, E3। आप ये डायग्राम देखिए, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि प्रोटीन है, इस प्रोटीन में आपका ATP यूज़ हुआ, इस ATP की हेल्प से आपका यूबिक्विटिन चेन अटैचमेंट हुआ, यूबिक्विटिन चेन अटैचमेंट हुआ और इसमें कुछ एंजाइम्स भी इन्वॉल्व है, ठीक है। उसके बाद आपका ये जो पूरा का पूरा आपका होल, ये पूरा सेटअप ये जाता है आपका प्रोटियोजम के अंदर। प्रोटियोजम के अंदर जाने के बाद आपका यूबिक्विटिन रिलीज हो जाता है और अपना अमीनो एसिड अलग रिलीज हो जाता है। तो व्हाट इज प्रोटियोजम, ठीक है। प्रोटियोजम बेसिकली आपका क्या है, प्रोटियोजोम आपका एक मल्टी सब यूनिट है, ठीक है, कॉम्प्लेक्स मल्टी सब यूनिट है जो कि आपका प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स में होता है, ठीक है। और ये आपका एक बैरल शेप्ड होता है, ठीक है। ये बेसिकली आपका प्रोटीन को डिग्रेड करने में हेल्प करता है, ठीक है। ये प्रोटीन को डाइजेस्ट नहीं करता पर उन्हें तोड़ता है, प्रोटीन डिग्रेडेशन को रेगुलेट करता है, ठीक है, ओके। और इससे आपका प्रोटीन डिग्रेड हो जाता है। यही आपका यूबिक्विटिन मेडिएटेड प्रोटीन डिग्रेडेशन। बहुत सिंपल, बहुत इजी, मैंने तुम्हें इसको स्ट्रेट फॉरवर्ड रखा है, ठीक है। चलिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर। नेक्स्ट टॉपिक क्या है? नेक्स्ट टॉपिक इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट, दैट इज अमीनो एसिड डीएमिनेशन। What is amino acid deamination and why we are studying amino acid deamination? क्योंकि रिसेंटली हमने प्रोटीन डिग्रेडेशन कंप्लीट किया है तो हमारे लिए बहुत ईजी होगा इसे समझना, ठीक है। तो अमीनो एसिड डीएमिनेशन यानी कि अमीनो एसिड का हटना, अमीनो एसिड का रिमूव होना। सो बेसिकली ये आपका अमीनो एसिड कैटाबलिज्म में आता है, ओके। ये आपका अमीनो एसिड कैटाबलिज्म में आएगा, अमीनो एसिड कैटाबलिज्म, सॉरी एक सेकेंड, हाँ। तो अमीनो एसिड कैटाबलिज्म में क्या होता है, तो बेसिकली अमीनो एसिड कैटाबलिज्म में आपका अमीनो एसिड जो है वो आपका डीजनरेट करता है, वो डिग्रेड होता है, ठीक है। क्या होता है कि आपका अमीनो एसिड में से अमीनो ग्रुप अलग हो जाता है कैटाबलिज्म में, ठीक है। आपका अमीनो ग्रुप अलग हो जाएगा और आपका कार्बन स्केलेटन अलग हो जाएगा, गॉट इट, ठीक है। ये दोनों अलग अलग हो जाते हैं, ठीक है, ये होता है। एक सेकेंड, थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है मुझे, ओके, ठीक है। ये आपका अमीनो एसिड कैटाबलिज्म होता है, राइट। अब जो अमीनो एसिड आपका रिमूव हुआ वो तो या तो वो आपका मेटाबॉलिक इंटरमीडिएट बनाएगा, ठीक है, या आपका
जो कार्बन स्केलेटन वाला पार्ट है दैट विल ईदर डिग्रेड और either will form TC इंटरमीडिएट्स, ठीक है। डिपेंड करता है आपका कार्बन, जो आपका कार्बन स्केलेटन है दैट इज ग्लूकोजेनिक और कीटोजेनिक, दैट इज अ डिफरेंट थिंग। ओके, हम पढ़ गया रहे अमीनो एसिड डीएमिनेशन, दैट इज मोर इम्पॉर्टेंट। उसमें आपका जो आपका अगर आपका अमीनो ग्रुप रिमूव होता है इन द फॉर्म ऑफ अमोनिया, सो उस कंडीशन में इट विल गेट इनकॉर्पोरेटेड इनटू यूरिया फॉर एक्सक्रिएशन, ठीक है। अगर आपका अमीनो एसिड डीएमिनेशन हो रहा है और आपका अमीनो ग्रुप अमीनो ग्रुप की जगह पे अमीनो ग्रुप जो है आपका वो अमोनिया में कन्वर्ट हो रहा है, जैसे ही लिखा हुआ है इसमें, ठीक है। दिस वन अमोनिया में कन्वर्ट हो रहा है, उस कंडीशन में आपका जो अमोनिया है वो यूरिया साइकिल में जाएगा और आपका एक्सक्रिएट हो जाएगा। गॉट इट, ठीक है। द रिमूवल ऑफ अल्फा अमीनो ग्रुप फ्रॉम अमीनो एसिड इन्वॉल्व्स टू टाइप्स ऑफ बायोकेमिकल रिएक्शन, ट्रांसअमीनेशन एंड ऑक्सीडेटिव डीअमीनेशन। बेसिकली आपका जो अल्फा अमीनो ग्रुप होता है, अल्फा अमीनो ग्रुप मीन्स जिसमें आप जिस कार्बन के साथ आपका, पहले तो ये इम्पॉर्टेंट, अल्फा कार्बन से जो अमीनो ग्रुप अटैच होता है दैट इज अल्फा अमीनो, ठीक है। तो उसका आपका रिमूवल होता है और वो उसमें दो बायोकेमिकल रिएक्शंस होते हैं, दो पाथवे हैं बेसिकली, दीज आर ट्रांसअमीनेशन एंड ऑक्सीडेटिव डीअमीनेशन। ओके, transamination and oxidative deamination. So what happens in transamination? In transamination there is a removal of alpha amino group, ठीक है। So what happens in transamination? तो अब ये जो अल्फा अमीनो ग्रुप है वो रिमूव तो ठीक है, तो हम ब्रॉडली हम डीएमिनेशन में पढ़ रहे हैं, तो स्पेसिफिक क्या है इसमें? स्पेसिफिक ये है कि द अल्फा अमीनो ग्रुप फ्रॉम वन अमीनो एसिड इज ट्रांसफर्ड टू अल्फा कीटो एसिड टू प्रोड्यूस अ न्यू अमीनो एसिड, ठीक है। अब इसको हम देखते हैं ज़रा डायग्राम। ये आपका जो ये अमीनो अल्फा, ये जो अमीनो एसिड है, ये जो अमीनो ग्रुप है आपका, दैट इज ट्रांसफर्ड टू योर keto acid and produce a new, this is a keto acid, ये यहाँ ट्रांसफर हो जाएगा, this will produce a new amino acid, got it, ठीक है। अच्छा, इसमें जो एंजाइम इन्वॉल्व होता है दैट इज अमीनो ट्रांसफरेज, ट्रांसअमीनेज या अमीनो ट्रांसफेरेज, ट्रांसअमीनेज भी कह सकते हैं हम उसको, ठीक है। और इसका कोएंजाइम इज पायरोडॉक्सिल 5-फॉस्फेट। ओके, सो व्हाट हैपेंस, अमीनो ट्रांसफरेज एक्ट बाय ट्रांसफरिंग द अमीनो एसिड ऑफ एन अमीनो ग्रुप ऑफ एन अमीनो एसिड टू द पायरोडॉक्सिल पार्ट ऑफ द कोएंजाइम टू जनरेट पायरोडॉक्साइन फॉस्फेट, ठीक है, PLP। तो ये जो है आपका अमीनो ट्रांसफरेज जो है वो आपका क्या करेगा, बेसिकली क्या करता है, आपका जो अमीनो ग्रुप होता है अमीनो एसिड से निकाल के उसको पैराडॉक्सिल पार्ट में आपका कोएंजाइम के वहाँ ट्रांसफ़र करता है, ठीक है। ये पैराडॉक्सिल आपका ट्रांसफ़र करता है आपका टू द कीटो एसिड, ठीक है, टू द कीटो एसिड, इसलिए इसका ये हेल्प है, मतलब बेसिकली helps for the transfer of alpha amino group to the keto acid। ओके, चलिए। अच्छा, ये आपका एंजाइम हो गया, ये आपका कोएंजाइम हो गया। अच्छा, एक और इम्पॉर्टेंट बात, जो आपका ये ये जो आपका एंजाइम है अमीनो ट्रांसफरेज, ट्रांसअमीनेज, ये आपका यूकैरियोट्स में इट कैन बी फाउंड इन बोथ साइटोप्लाज्म एंड माइटोकॉन्ड्रिया। ओके, अच्छा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज ग्लूटामेट। आप देख रहे होंगे इसमें ग्लूटामेट ज़्यादातर इसमें देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि इसमें अमीनो एसिड का डोनर कौन है, ठीक है। इस ट्रांसअमीनेशन रिएक्शन में अमीनो एसिड का डोनर कौन है और रिसेप्टर कौन है। ये मोस्टली होता है कि मोस्टली कंडीशन में ग्लूटामेट जो होता है वो आपका अमीनो ग्रुप का डोनर होता है, ठीक है,
और जो आपका अमीनो ग्रुप है वो ग्लूटामेट से डोनेट करता है और वो ट्रांसफ़र होता है आपका अल्फ़ा कीटो एसिड से अल्फ़ा कीटो एसिड को बाय ट्रांसअमीनेशन। ठीक है, चलिए, सो ट्रांसअमीनेशन यहाँ ओवर होता है। हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की और दैट इज ऑक्सीडेटिव डीअमीनेशन। व्हाट इज ऑक्सीडेटिव डीअमीनेशन? ऑक्सीडेटिव डीअमीनेशन मीन्स आपका अमीनो ग्रुप इज कन्वर्टेड इनटू कॉरेस्पॉन्डिंग कीटो एसिड बाय रिमूवल ऑफ अमाइन ग्रुप functional group as ammonia and the amine functional group is replaced by ketone group। अच्छा, क्या बात, इसका बोलने का मतलब ये है what happens basically कि आपका अभी हमने पहले पढ़ा था कि इधर देखिए इस वाली स्लाइड में कि अल्फा कीटो ग्लूटारेट से आपका ग्लूटामेट बन रहा था। ठीक है, अल्फा कीटो ग्लूटारेट से आपका ग्लूटामेट बन रहा था। ऑक्सीडेटिव डीअमीनेशन में आपका ग्लूटामेट से अल्फा कीटोग्लूटारेट बनता है। यहाँ पे जो आपका यहाँ पे जो आपका अमीनो ग्रुप होता है, जो अमाइन ग्रुप होता है, दैट इज रिलीज्ड एज अमोनिया, ओके, ठीक है, एक तो ये पॉइंट है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज, और ये जो अमोनिया है ये आपका यूरिया साइकिल में चला जाता है। ओके, ठीक है, और ये जो डीअमीनेशन होता है, दिस पॉइंट इज इंपॉर्टेंट, डीअमीनेशन ऑकर मेनली थ्रू द ऑक्सीडेटिव डीअमीनेशन ऑफ ग्लूटामेट डिहाइड्रोजिनेज। इसमें एक एंजाइम यूज होता है दैट इज ग्लूटामेट डिहाइड्रोजिनेज, जो कि ये पूरा रिएक्शन कैरी फॉरवर्ड करता है, कैटलाइज करता है। ठीक है, एंड दैट इज ग्लूटामेट टू अल्फा कीटोग्लूटारेट का फॉर्मेशन, अल्फा ग्लूटामेट से अल्फा कीटोग्लूटारेट का फॉर्मेशन एंड अमोनिया का रिमूवल। ठीक है, अच्छा, ये इस रिएक्शन में कुछ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी यूज होते हैं। ठीक है, दैट इज NAD प्लस और NADP प्लस। ठीक है, ऑक्सीडेटिव डीअमीनेशन इज एन इम्पॉर्टेंट स्टेप इन कैटाबॉलिज्म ऑफ अमीनो एसिड, generating more metabolized form of amino acid and also generating ammonia as a toxic byproduct। ओके, तो यही था आपका अमीनो एसिड कैटाबॉलिज्म और अमीनो एसिड डीअमीनेशन। ओके, अच्छा, एक इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं आपको मेंशन करना भूल गई, अगर आपका ट्रांसअमीनेशन इज फॉलोड बाय ऑक्सीडेटिव डीअमीनेशन, इन दैट कंडीशन, there is a terminology that is known as transdeamination. So what happens in transdeamination? In transdeamination, transamination is followed by oxidative deamination। okay, ठीक है, तो यही हम पढ़ रहे थे कि अल्फ़ा जो आपका अल्फ़ा अमीनो ग्रुप है वो कैसे रिमूव होता है एज अमोनिया। मैंने स्टार्टिंग में बताया था वो ऑक्सीडेटिव डीअमीनेशन के थ्रू एज अमोनिया रिमूव होता है। ट्रांसअमीनेशन में वो अल्फ़ा अमीनो एसिड ग्रुप आपका ट्रांसफर होता है, राइट, और आपका एक न्यू कीटो अल्फ़ा कीटो एसिड बनता है। सो दैट इज़ ऑल अबाउट एसिड कैटाबॉलिज्म। सो फ्रेंड्स, here our session ends. If you guys have any problem regarding the topic, please leave it in the comment section.